Electricity is the most useful form of energy. But what is electricity? Why it is the most convenient and useful form of energy? How does an electric bulb glow when we switch on the button? These all answers you get in the chapter Electricity. Hello, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the topic that is electricity. But before discussing the term electricity, let me introduce with some common terms that are used in this chapter. So very first thing is nature of charges. Nature of charges. On the basis of nature of charges are classified on the basis of charging, on the basis of charging and behavior of charges, behavior of charges with each other. Before discussing the nature of charges, let me introduce with some properties. That first property is uncharged object gets attracted by the charged object, or you can say the charged object attracts uncharged object. ठीक है. Second property is like charges repel each other, and third is unlike charges attract each other, But before discussing these three properties, I will introduce you with one example. That a glass, simple, you can take a glass scale and a bit pieces of paper, small pieces of paper. Initially you see that this glass rod is not attracting the pieces of paper because neither of them are charged. उनमें से कोई भी जो है वो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट नहीं है. इसीलिए आप इनिशियली क्या देखोगे कि वो बिट्स ऑफ पेपर जो है दे गेट रिपेल विद द ग्लास रोड. ठीक है. Similar cases, if you do with your pen, then the same case also occurs. But when you rub that glass rod or glass scale on a silk cloth or on your head, oily hairs, then that glass rod become charged. वो glass rod क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी. उसके बाद जब आप उस glass rod को अपने pieces of paper के पास लेके जाओगे तो that glass rod attracts the pieces of paper because the glass rod get charged. वो glass rod जो हो गई वो क्या हो गई? अब चार्ज हो गई. अब वो चार्ज ऑब्जेक्ट है और आपके अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स क्या है? पीसेस ऑफ पेपर है. तो इसलिए ग्लास रॉड जो है वो अनचार्ज पेपर को अट्रैक्ट करेगी. So this is the first property of the nature of charges, and the second property is like charges repel each other. Take two glass rods, rub both the glass rods on the silk cloth or on your oily head, then both the glass rods become charged. ठीक है. दोनों पर चार्ज आएगा, दोनों पे सेम चार्ज आएगा, and when you bring these two glass rods near each other, you will feel that there is a repulsion between these glass rods. ठीक है. Because like charges repel each other. दोनों के ऊपर सेम टाइप ऑफ चार्जेस है, इसलिए लाइक चार्जेस जो है वो क्या हो गए? आपके रिपेल ईच अदर हो गए. नाउ व्हेन अभी आपने क्या किया? सेम एक्सपेरिमेंट से हमने तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो डिराइव की हैं. थर्ड चीज क्या है? जब उस ग्लास रॉड को आप किसके पास लेके जाते हो? सिल्क क्लॉथ के पास लेके जाते हो या आप अपने हेयर्स के पास लेके जाते हो,
तो हेयर्स जो है वो उस ग्लास रॉड से क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिस ग्लास रॉड को आपने अपने हेयर्स पे रब करके या सिल्क क्लॉथ पे रब करके क्या किया था, चार्ज किया था। बिकॉज बोथ आर डेवलपिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस, दोनों पे क्या है, अलग टाइप ऑफ चार्ज है, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, दैट्स व्हाई द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां से आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। अब इन एक्सपेरिमेंट्स से साइंटिस्ट ने क्या किया, इन एक्सपेरिमेंट्स को आगे एडवांस जो है वो रिपीट किया और उसके बेसिस पर नेचर ऑफ चार्जेस को क्लासिफाई किया कि हमारे पास दो टाइप्स ऑफ चार्जेस जो है वो होते हैं, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को हम एटम्स की अगर लैंग्वेज में बोले तो दे आर नोन एज प्रोटॉन्स, उनको क्या कह देते हैं, प्रोटॉन्स कह देते हैं, अगर हम उनको एटम या मॉलिक्यूल्स की लैंग्वेज में बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज जो होता है दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रॉन्स, उनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, एंड दे आर हैविंग द चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना उनके पास क्या होता है, चार्ज होता है। अब क्या होता है कि कोई भी एटम जो, देखो कोई भी चीज जो है वो किससे बनी है, मॉलिक्यूल से बनी है, मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं, एटम से बने हैं। एटम्स के अंदर जो हमने स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटम्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है कि उसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इनिशियली। सिमिलर केस है जो ग्लास रॉड हमने रब नहीं की है, सिंपल जब आपने ग्लास रॉड ली है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट जब आप उस ग्लास रॉड को अपने सिल्क क्लॉथ के ऊपर या अपने हेयर्स पर रब करोगे तो क्या होगा, एक के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो इट मीन्स नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होगा, जब आपके पास नेगेटिव चार्जेस जो हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट में, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर ज्यादा हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज किसी ऑब्जेक्ट में कब डेवलप होगा, जब उसके अंदर प्रोटॉन्स की अमाउंट जो है वो ज्यादा हो जाएगी, तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब ग्लास रॉड पे मेरे पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और सिल्क क्लॉथ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब वो कैसे होता है वो मैं अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बताऊंगी, बट बिफोर डिस्कसिंग दैट लेट मी इंट्रोड्यूस वन मोर टर्म दैट इज टाइप्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग जो है वो कितने तरीके की होती है। अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि ग्लास रॉड को जब हम रब करते हैं, ठीक है, रब करने से क्या होता है कि वहां पर फ्रिक्शन डेवलप होता है। फ्रिक्शन डेवलप होगा तो क्या होगा, हमारा चार्ज कैरियर्स जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट पे चार्जिंग जो है वो डेवलप हुई। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जिंग। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग अ बॉडी बाय फ्रिक्शन, और यू कैन से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बट चार्जिंग बाय फ्रिक्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूं एक और टर्म से। किसी भी मटेरियल को, मटेरियल्स जो है वो हमारे पास किससे बने हैं, मॉलिक्यूल्स और एटम से बने हैं, ठीक है। अब किसी भी मटेरियल को, अगर देखो दो तरीके के मटेरियल्स हैं हमारे पास इनिशियली जो अभी आपके सिलेबस में है। दो तरीके के मटेरियल्स कौन से हैं, एक तो वो है दे आर पासिंग the electricity through them, they allow the passing of electricity through them, and they do not allow the passing of electricity through them or pass of electricity through them. Electricity through them. अब
मेटीरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, दे आर नोन एज कंडक्टर्स। उनको क्या कहा जाता है? कंडक्टर्स कहा जाता है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कम अंडर दिस कैटेगरी। एग्जाम्पल इज ऑल मेटल्स। ठीक है। अब मेटीरियल्स which do not allow the passing of electricity through them, they are known as insulators. उनको क्या कहा जाता है? इंसुलेटर्स कहा जाता है। लाइक वुड, प्लास्टिक, कॉटन, और यू कैन से क्लॉथ और एनीथिंग। ठीक है, ये क्या है? ये इंसुलेटर्स हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। अब ये तो मैंने बता दिया कि मटेरियल्स की हमारे पास क्या होती है? टाइप होती हैं, जो हमारे किस में कैटेगराइज है? हर एक मटेरियल को हमने किस में कैटेगराइज किया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक उनमें जो उनको कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, दे आर नोन एज कंडक्टर्स, और एक उस कैटेगरी में जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देता, दैट इज नोन एज इंसुलेटर्स। बट व्हाट अबाउट द टाइप्स ऑफ चार्जिंग? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन में क्या था? जब हमने ग्लास रॉड को रब किया था किसके ऊपर? सिल्क क्लॉथ के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या हो गया? हमारा चार्ज हो गया। अब जो देखो, ग्लास रॉड को हमने किस पे रब किया है? व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड ऑन सिल्क क्लॉथ। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं एक चीज बताती हूं कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए ये मेरे पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, एंड दे आर नोन एज ऑर्बिट्स। इनको क्या कहते हैं हम? ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट है दैट इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और ऑर्बिट्स में जो रिवॉल्व कर रहा है दे आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हुआ क्या? जब ग्लास रॉड को आपने रब किया सिल्क क्लॉथ के ऊपर, तो ग्लास रॉड के जो ऑर्बिट्स पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? उनमें मूवमेंट होगी। उनमें मूवमेंट होगी तो उसके मतलब एटम्स के अंदर जो है वो आपकी मूवमेंट होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास जब इनफ एनर्जी हो जाएगी तो वो क्या करेंगे? उस ऑर्बिट से बाहर आएगा। उस ऑर्बिट से बाहर आएगा तो दैट इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू दैट सिल्क क्लॉथ ऑन विच यू रब द ग्लास रॉड। इसी वजह से क्या होगा? सिल्क क्लॉथ के ऊपर हमारे पास जो चार्ज डेवलप होगा दैट इज नेगेटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो ऑटोमेटिकली देखो, इनिशियली ग्लास रॉड का जो एटम था दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो थे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल थे। जब ग्लास रॉड के एटम्स ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क क्लॉथ पे ट्रांसफर कर दिया, तो यहां पर नंबर इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट जो हो गई वो क्या हो गई? ज्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, वो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स है, इसीलिए सिल्क क्लॉथ जो है वो क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज कैरियर हो गया। नाउ अब यहां पर ग्लास रॉड पर क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई। मींस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए एटम को जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे उतने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास नहीं है, उससे कम है, तो इट मींस दैट इज गॉट गेटिंग पॉजिटिव चार्ज। तो इसके पास क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब आपने रब किया है इन दो बॉडीज को, तो यहां पर बॉडीज जो हो गई वो रबिंग से क्या हो गई? चार्ज हो गई। सो दैट फिनोमेना इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। उसको क्या कहा जाता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहा जाता है। नाउ द सेकेंड फिनोमेना इज चार्जिंग अ बॉडी बाय कंडक्शन। सेकेंड फिनोमेना इज charging a body by conduction.
चार्जिंग अ बॉडी बाय कंडक्शन का मतलब क्या है? देखो, हमने एक्सपेरिमेंट जो भी किया उसमें बताया, मैंने जो एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको किसी रील के अंदर दिखाऊंगी कि कैसे होता है कंडक्शन की। इसमें क्या होता है, जब ग्लास रॉड जो कि चार्ज है, जिसको आपने चार्ज कैसे किया था, सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब करके चार्ज किया था, उसको आप बिट ऑफ पेपर्स के पास लेके आओगे तो क्या है, ग्लास रॉड जो है वो आपकी चार्ज है, ठीक है, पर बिट्स ऑफ पेपर जो है वो चार्ज नहीं है। बट जब ग्लास रॉड को आप उन पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके आते हो, रब्ड ग्लास रॉड को आप पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके आते हो, तो वो पीसेस ऑफ पेपर जो है वो क्या हो जाते हैं, वो उस ग्लास रॉड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेकर के आएंगे तो इन दैट पर्टिकुलर केस अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स गेट्स द चार्ज बाय अ फिनोमेना दैट इज नोन एज चार्जिंग अ बॉडी बाय कंडक्शन। उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? एक बॉडी को चार्ज करना बाय कंडक्शन। और ये होता किस केस में है? जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास या अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं, ठीक है। तो ये फिनोमिना होता है चार्जिंग अ बॉडी बाय कंडक्शन। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इज, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज इज इट हैज अ मैग्नीट्यूड। फर्स्ट वन इज चार्ज इज हैविंग द मैग्नीट्यूड। अभी मैंने बताया कि हमारे पास दो तरीके के चार्जेस जो हैं वो अवेलेबल है, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड वन इज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जो है उसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी, पॉजिटिव चार्ज की भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं, दैट इज सेम एज नेगेटिव चार्ज, वो भी सेम नेगेटिव चार्ज की तरह होती है। और जो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है दैट इज मेजर्ड इन कूलम्स, दैट इज मेजर्ड इन कूलम्स एंड इन शॉर्ट फॉर्म इट इज रिटन एज C, ठीक है। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इज एडिटिव मीन्स दो चार्जेस हैं आपके पास, मान लो यहां पर आपके पास चार्ज है, चार्जेस अभी के लिए फिलहाल सेवेंथ क्लास के लिए इतना ही है कि चार्जेस जो होते हैं वो एडिटिव इन नेचर्स होते हैं। मीन्स अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एक का चार्ज है -1.6, इलेक्ट्रॉन्स का नॉर्मली चार्ज जो होता है दैट इज, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होगा वो, दो इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, -3.2 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो चार्जेस जो होते हैं दैट आर एडिटिव इन नेचर, वो एडिटिव होते हैं नेचर में। थर्ड थिंग इज कि चार्जेस जो होते हैं दे आर कंजर्वेटिव, मींस उनको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, दे आर कंजर्वेटिव। एंड द फोर्थ वन इज दे आर क्वांटाइज्ड, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। ये हम डिटेल में बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि इन क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, या फिर हम कैसे इनको, मतलब कंजर्वेटिव है तो किस तरीके से हैं, एडिटिव है तो किस केस में हम कैसे उनका एडिटिव प्रूफ करते हैं, कंजर्वेटिव कैसे प्रूफ करते हैं, और चार्जेस का क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है। ये सारी अभी के लिए क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं आपके सिलेबस में कि ये प्रॉपर्टीज होती हैं, बट क्या होती हैं और कैसे हम इनको स्टडी करते हैं वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंडक्शन? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के फिनोमिना को समझने के लिए मैं क्या करती हूं, एक बॉडी लेती हूं, लेट मी टेक वन बॉडी, that is positively charged,
ठीक है, ये बॉडी है, ये कौन सी बॉडी है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। जब इस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, जब इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास में हम एक और बॉडी लेके आते हैं, लेट मी टेक अनदर वन, ठीक है, ये बॉडी जो है ये अभी फिलहाल क्या है? न्यूट्रल बॉडी है। इनिशियली दैट बॉडी इज न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, जब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी के क्लोजनेस में आएगी, उसके अप्रोक्सीमेट एरिया में आएगी, तो क्या होगा? ये न्यूट्रल बॉडी है, मींस इसके अंदर मेरे पास पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। लेकिन अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अनलाइक चार्जेस गेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। सो क्या होगा? ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाली साइड जो है वो अट्रैक्ट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के साइड अट्रैक्ट हुए। तो यहां पर पीछे हमारे पास और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो इससे रिपेल होंगे तो कहां जाएंगे? दूसरे एंड पर जाएंगे। तो यहां पर बेसिकली हुआ क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुआ। ठीक है, बिकॉज क्यों हुआ? इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर क्या आकर हुआ? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अकर क्यों हुआ? क्योंकि ये एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आया। चार्ज बॉडी मेरी पॉजिटिवली थी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो गए और जो प्रोटॉन्स थे वो क्या हो गए? इससे रिपेल हो गए। अब रिपेल हो गए तो वो दूसरी एंड की तरफ अट्रैक्ट हुए, दूसरी एंड पर इकट्ठे हो गए। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो अकर हुआ दैट इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। उस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इंडक्शन कहा जाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। बेसिकली जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अकर हुआ न्यूट्रल बॉडी में, किसकी वजह से? चार्ज बॉडी की वजह से। दैट फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। अब यही सेम फिनोमेना जो है वो हमारा यूज होता है किसके अंदर? जो हमारी लाइटनिंग होती है उस केस में। अब लाइटनिंग में होता क्या है? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइटनिंग। लाइटनिंग जो था वो एक साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन करके थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि लाइटनिंग जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है दैट इन्वॉल्व्स द चार्ज पार्टिकल्स। वो किसको इन्वॉल्व करता है? चार्ज पार्टिकल्स को इन्वॉल्व करता है। कैसे इन्वॉल्व करता है? लेट दिस इज द बिल्डिंग, this is the ground, this is the building। ठीक है, अब यहां पे क्या है? क्लाउड्स है। क्लाउड्स के अंदर बेसिकली क्या होती हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। ठीक है, अब वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो दो तरीके की होती हैं। वन इज स्मॉलर वाटर ड्रॉपलेट्स एंड वन इज लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, जो स्मॉलर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं दे कैरी द पॉजिटिव चार्ज एंड जो लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स हैं दे कैरी द नेगेटिव चार्ज। अब लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स, लार्ज है तो ऑटोमेटिकली वो क्या है? हैवी है। हैवी है तो वो चीज हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाती है? नीचे आ जाती है। तो इट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स जो है क्लाउड में वो क्या हो जाते हैं? मेरे पास सेपरेट आउट हो जाते हैं एट द बॉटम। ठीक है, कलेक्ट हो जाते हैं कहाँ? बॉटम में।
जो स्मॉलर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं, वो कहाँ होती है? क्लाउड में ऊपर इकट्ठी हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। अब दो क्लाउड्स के बीच में अगर मैं देखूं तो बेसिकली है क्या, यहां पर एक एयर प्रेजेंट है। दैट एयर इज बेसिकली एक्टिंग एज, हियर एयर इज एक्टिंग एज एन इंसुलेशन मीडियम। एयर इज एक्टिंग एज इंसुलेशन मीडियम, ठीक है। अब सिमिलरली इसमें भी क्या हुआ, यहां पर पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट हो गए, यहाँ नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट हो गए, यहाँ पॉजिटिव हो गए, अब नीचे मेरे क्या हो गए? नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट। जब ये सेपरेशन ऑफ चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस केस में जो ये इंसुलेशन लेयर जो यहाँ फॉर्म हुई है, किसके बीच में? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में, वो ब्रेकआउट हो जाती है। वो ब्रेकआउट होगी तो क्या होगा? एक हमारे पास क्रैकलिंग साउंड आएगी। इंसुलेशन लेयर, जैसे देखो जब आपके घर में क्या होता है, कोई फ्यूज उड़ गया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? आपको एक आवाज सुनाई देती है। सिमिलर केस है यहां पर भी, जब ये चार्जेस जो है इनके बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा हो जाए, या कलेक्शन जो है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस जो है वो हमारे बहुत ज्यादा सेपरेट आउट हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? जो ये इंसुलेशन लेयर है या इंसुलेशन मीडियम जो फॉर्म हुआ है, दैट विल ब्रेक आउट। वो क्या होगा? ब्रेकआउट हो जाएगा। और ब्रेकआउट होने के बाद में वहां पर एक फिनोमेना अकर होगा, दैट फिनोमेना इज नोन एज डिस्चार्ज। कब होगा? जब ये इंसुलेशन लेयर जो है वो मेरी क्या हो जाएगी? ब्रेकआउट हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में एक फिनोमेना अकर होगा, दैट इज नोन एज डिस्चार्ज। एंड इस डिस्चार्ज से होता क्या है? बेसिकली एक स्पार्क जो है वो जनरेट होगी, साथ में एक क्रैकलिंग साउंड, स्पार्क एंड क्रैकलिंग साउंड जो है वो जनरेट होगी, दैट इज बेसिकली नोन एज लाइटनिंग। उसको क्या कहा जाता है? लाइटनिंग कहा जाता है। अब वो लाइटनिंग जो है वो यहां से जनरेट तो हो गई, वो लाइटनिंग अर्थ तक पास होने के लिए किसका यूज करती है? ट्रीज को यूज करती है, टॉल बिल्डिंग्स को यूज करती है, एंड एनी अदर मीडियम, जो भी आपके पास टावर है, मतलब चाहे मोबाइल टावर हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी टावर हो, इन सारे टावर्स को वो यूज करती है टू पास दैट डिस्चार्ज और स्पार्क टू द ग्राउंड, अब और टू द अर्थ यू कैन से। तो उसको अगर आपको डैमेज से बचाना है अपनी बिल्डिंग को, तो उस केस में हम यूज करते हैं एक लाइटनिंग कंडक्टर का। वी आर यूजिंग अ लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग लगाया जाता है, और उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके का होता है। दिस इज बेसिकली द लाइटनिंग कंडक्टर। थिक वायर है, दैट विल पास फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द ग्राउंड। ग्राउंड तक पास की जाती है ये बिल्डिंग, और ग्राउंड में डीप इनसाइड द ग्राउंड जाकर के इसको छोड़ दिया जाता है। दिस लाइटनिंग कंडक्टर जो है, दैट इज बेसिकली यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स एंड अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पोटेंशियल डैमेज कॉज्ड बाय द लाइटनिंग, ठीक है। नाउ लाइटनिंग कंडक्टर इज अ थिक मेटेलिक स्ट्रिप, ये एक मेटेलिक स्ट्रिप है, एंड इट इज हैविंग लाइक एंटीना लाइक स्ट्रक्चर, this V-like type structure. This is antenna basically, you can say. This is a thick metallic strip, or you can say this is a spike like structure. ठीक है, ये क्या है? स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारा अपवर्ड प्रोजेक्टेड होता है बिल्डिंग पर, और इसको टॉप ऑफ द बिल्डिंग से लेकर के ग्राउंड तक पास किया जाता है। कहां पर? आउटर वॉल, जो भी बाहर वॉल स्ट्रक्चर की जो आउटर वॉल है उससे पास करते हैं, इनर वॉल से पास नहीं करते, सिर्फ आउटर वॉल से पास किया जाता है इसको। एंड द लोअर एंड ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर इज जॉइंड टू अ मेटल प्लेट। इसको किसके साथ ज्वाइन किया जाता है? एक मेटल प्लेट के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और इस मेटल प्लेट, ये जो मेटल प्लेट के साथ इसको ज्वाइन किया है, ये इनसाइड द अर्थ जो है वो डीपली बरीड की जाती है, जिससे कि लाइटनिंग की वजह से कोई भी इस बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचे। ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ दिस इलेक्ट्रिसिटी वर्क। ये इलेक्ट्रिसिटी जो है बेसिकली होती क्या है, या फिर हमारे चार्ज पार्टिकल्स जो है वो किस तरीके से वर्क करते हैं।
Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you for